آپ کو بتائیں کہ گرین پنجاب کا خواب ایک اور شہر میں حقیقت بن گیا۔ چنیوٹ کی سڑکوں پر بھی جدید الیکٹرک بسوں کی انٹری، بسیں چلانے پر عوام کا اظہار تشکر۔ شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں، بس میں موجود ہیں ہمارے نمائندے وقار گھمن۔ جی وقار، بتائیے گا کیا رد عمل ہے اس پہ شہریوں کا، کتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں وہ؟ میں پہلی بار پبلک ٹرانسپورٹ کا آج باضابطہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ سی ایم پنجاب مریم نواز نے اس کا ورچوئل افتتاح بھی کیا ہے۔ اراکین صوبائی اسمبلی، مسلم لیگ نواز کے رہنما، کارکنان اور ضلعی افسران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی اس الیکٹرک بس سروس کی پہلی رائڈ ہمارے ساتھ جو آج کے موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اراکین اسمبلی سے جانیں گے کہ ضلع چنیوٹ میں پہلی بار ایک پبلک ٹرانسپورٹ کی سروس فراہم کی جا رہی ہے، اس پر ان کی گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے۔ ثاقب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتا ہے۔ صاحب، سی ایم پنجاب نے آج چنیوٹ میں پہلی بار اس سروس کا آغاز کیا ہے، ایک سروس ملی ہے، آپ کے چاہنے والوں کو کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میڈم سی ایم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اس کے لیے ہم پورے پارلیمنٹرین جو ہیں تحصیل چنیوٹ کے، تحصیل بہونا کے، لالیاں کے، ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جتنا میڈم ہماری ڈی سی نے کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ودن فیو ڈیز میں انہوں نے چارجنگ پوائنٹس وہاں پہ لگوائے، اور آج انشاءاللہ سروس سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ پوری عوام کے لیے خوش آئین بات ہے کہ آج جو چنیوٹ کو بسز ملی ہیں وہ مفت سفر کریں گے تقریباً، اور سی ایم نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ چنیوٹ کو ایک جو روٹ رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ فیو ڈیز میں ہم وہ بھی پورا کریں گے۔ مولانا محمد الیاس یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت سڑکیں بھی بن گئی ہیں، بسیں بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے عوام کی طرف سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعظم پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس وقت میں خود ایم پی اے اور میرے ساتھ چودھری ثاقب چدر صاحب، ہماری ڈپٹی کمشنر صاحبہ عائشہ رضوان صاحبہ، ہمارے ڈی پی او صاحب چودھری مسعود اقبال صاحب، اور ہمارے تاجب برادری کے حاجی جمیل فخری صاحب، تمام ضلع ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے افسران اور عوام لوگ یہاں جمع ہیں، اور سب اپنے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اعلیٰ سوچ ہے، جو دوسرے ملکوں میں ہم سہولت والا یہ سفر دیکھتے تھے، آج میں اپنی سڑکوں کے اوپر دیکھتے نصیب ہوا۔ آج پہلی مرتبہ ہمارا یہ جو ون وے روڈ ہے اس کا گویا سمجھیں کہ اس ایئر کنڈیشن بسوں کے ذریعے سے ہی افتتاح ہو رہا ہے، اور ابھی 15 بسیں ہمیں ملی ہیں۔ تو مجھے بھی لال اکبر صاحب منسٹر جو ہیں ٹرانسپورٹ، انہوں نے کہا تھا کہ چند دنوں تک آپ کی 5 بسیں اور آ جائیں گی، اور اس سال کے اینڈ تک 40 بسیں ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ ہر تحصیل میں یہ سہولت ملے گی، تو بہت ہی بہترین یہ سہولت ہے، اور میں اس پر حکومت پنجاب کو، وزیر اعلیٰ کو، ان کی ٹیم کو، وزیر ٹرانسپورٹ کو، اور میاں شہباز شریف صاحب کو، سب کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین۔ بسوں کے لیے روٹس کون سے منتخب کیے گئے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر بھی اس بس میں اس وقت سفر کر رہی ہیں۔ میڈم، کون سے روٹس ہیں جن پر یہ بسیں چلیں گی؟ پہلے تو میں ہمارے جتنے بھی اہلیان چنیوٹ ہیں ان سب کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ میڈم سی ایم نے ان کو یہ بسز کا تحفہ دیا ہے۔ انیشلی ہمیں 10 بسز ملی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم 2 روٹس پہ چلائیں گے، چنیوٹ سے بھوانا کی طرف اور چنیوٹ سے لالیاں کی طرف۔ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم بسز ایڈ ہوتی جائیں گی، اور ہمارے روٹس بھی ایڈ ہوتے جائیں گے، اور ہم پورے ڈسٹرکٹ کو انشاءاللہ اس میں کور کریں گے۔ بالکل جی، پورا ڈسٹرکٹ اس میں کور ہوگا۔ کچھ شہری معززین شہر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ چور صاحب، یہ ایک بڑی سہولت دی جا رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آج آپ اس بس میں سفر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے پنجاب کا شکریہ ادا کرنا، آج ان کے ویژن کے مطابق یہاں پہ بسوں کا افتتاح ہو گیا۔ یہ یقیناً غریب لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے، عام لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ چنیوٹ جیسا علاقہ یہاں پہ بڑی مشکل ہوتی تھی ٹریفک کے لیے، لوگ جو ادھر ادھر جاتے ہیں، یہاں سے بہت سی لیبر دوسرے شہروں میں جاتی ہے، بہت سے لوگ ڈیلی دوسرے شہر میں جاتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑی سہولت ان کے لیے ہے۔ لالیاں سے بھی بڑی عوام کو شہر آنا پڑتا تھا، رکشوں پہ آتے تھے، بسوں میں آتے تھے، حادثات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھتا ہوں کہ عظیم لیڈر محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کے ویژن کو لے کے جتنا ملک کی ترقی ہوئی ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے ادوار میں ہوئی ہے، اور الحمدللہ بھی مریم نواز صاحبہ کے دور میں جیسے بے شمار پروجیکٹس ہوئے، ایسے ہی گرین بسز کا جو پروجیکٹ ہے وہ نچلے لیول پہ عوام کے لیے ریلیف ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جیسے چنیوٹ کا یہ ہمارا بہت درینہ مسئلہ تھا کہ یہ فیصل آباد چنیوٹ روڈ یہ بھی حل ہو گیا، اور ابھی اس کی اوپننگ بھی ہونے کو قریب ہے، اور اس کے ساتھ ہی بسز کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اس سے
पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के लिए, इन बसों की सिक्योरिटी के लिए डीपीओ चिन्योट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुबारक का दिन है, जिससे हमारे माशाल्लाह ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह मैडम सीएम ने भी फरमाया कि ये ऐड ऑन भी करेंगी इसको गवर्नमेंट इंशाअल्लाह ताला, और ये क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव है। इसमें ये हमारे छोटे सा खूबसूरत जो शहर है मैडम डीसी साहब की सरबराही में और पार्लियामेंटेरियंस की रहनुमाई में इंशाअल्लाह ताला जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा जी वो इंशाअल्लाह हम करेंगे। बिल्कुल जी, इन बसों के मुख्तलिफ फीचर्स भी हैं, वाईफाई की सहूलत इनमें मौजूद है, किसी किस्म का कोई शोर नहीं है, हर सीट के साथ मोबाइल चार्ज करने के लिए पॉड्स भी मौजूद हैं। चिन्योट के शहरियों को पहली बार एक बेहतरीन किस्म की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मुहैया की जा रही है। आज बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह हो चुका है और शहरी भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया वकार आपका। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद सरगोदा रोड पुल ढेंगरू पर मरकजी मुस्लिम लीग मुस्लिम रेस्क्यू मिशन के ज़ेर एहतमाम प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज मश्क का एहतमाम मरकजी मुस्लिम लीग और मुस्लिम रेस्क्यू मिशन की जानिब से किया गया। अपडेट करें आपको, फैसलाबाद सरगोदा रोड पुल ढेंगरू पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज जारी, मश्क का एहतमाम मरकजी मुस्लिम लीग मुस्लिम रेस्क्यू मिशन के ज़ेर एहतमाम किया गया। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू, इब्तदाई इमदाद और दीगर मशकें भी की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद सरगोदा रोड पुल ढिंगरू पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज जारी है। मशक का एहतमाम मरकजी मुस्लिम लीग और मुस्लिम रेस्क्यू मिशन के ज़ेर एहतमाम किया गया। दूसरी जानिब बोरजा में बारिश के कई घंटे बाद भी पानी की निकासी न हो सकी। थाना रोड और हफीज पार्क चौक में ताहाल बारिशी पानी मौजूद, अफसरान और मशीनरी गायब, शहरियों को दुश्वारी का सामना। मजीद तफसीलात जानते हैं हाफिज फरहान। जी फरहान बताइएगा। मैं इस वक्त रेस्क्यू ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। बारिश को हुए 6 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की नाअहली का ये मुंह बोलता सबूत है कि अब तक भी 6 घंटे गुजरने के बावजूद भी जो बारिशी पानी है उसकी निकासी को मुमकिन नहीं बनाया जा सका है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये बारिशी पानी तू का तू वहीं मौजूद है जो अभी अब से 6 घंटे कबल होने वाली बारिश की सूरत में यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, और ये वो सड़क पर मौजूद है जो करोड़ों रुपए की लागत से काफी अरसे के बाद जो है वो बनाई गई थी, लेकिन आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से अब तक पानी की निकासी को मुमकिन नहीं बनाया जा सका। इसके साथ साथ शहर की दीगर सड़कों की बात की जाए तो थाना रोड पर भी सेम इसी तरह म्यूनिसिपल कमेटी के सामने बिल्कुल इसी तरह पानी मौजूद है, जिसकी निकासी को मुमकिन नहीं बनाया जा सका। इंतजाम की जानिब से सीवरेज के निकास के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर कहीं पर भी इंतजामिया ना तो नजर आ रही है और ना ही इंतजामिया की मशीनरी और ना ही अफसरान किसी फील्ड में दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो नशीबी इलाके, वहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश ने गटरों को उबाल दिया है। बारिशी पानी जो है गलियों में खड़ा है। हफीज पार्क की बात की जाए तो वहाँ पर भी बारिशी पानी खड़ा है, जिससे शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बारिशी पानी यहाँ पर खड़ा रहा तो ये सड़क जो है जो करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की गई थी, वो ज्यादा टाइम जो है वो देर पा अपने बरकरार नहीं रख सकेगी और बहुत जल्द है बाकी सड़कों की तरह टूट की शिकार हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया फरहान आपका। तो आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नुमान सिद्दीक का तांदलियावाला का दौरे के दौरान फासिल और शिराजा पतन का मुआयना किया। अपडेट करें आपको, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद नुमान सिद्दीक का तांदलियावाला का दौरा। तफसीलात बता रहे हैं गुलरेज इकबाल। जी गुलरेज बताइएगा। जी बिल्कुल, ये डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद नुमान सिद्दीक ने तांदलेवाला का आज तफसीली दौरा किया है और डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों और जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया है। THQ हस्पताल की बात की जाए तो वहाँ पर तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी को चेक किया गया, सफाई के इंतजामात और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया गया। जबकि दूसरी जानब बलाल शहीद पार्क का दौरा करते हुए पार्क की खूबसूरती, शजरकारी, सफाई और शहरियों के लिए दस्तियाब तफरीही सहूलियात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने वासा के जारी मनसूबे का भी मुआयना किया। मुतलका अफसरान ने मनसूबे की पेशरफ्त पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी, जबकि सहूलत बाजार का दौरा करके अशिया जरूरिया की दस्तियाबी, म्यार और कीमतों को चेक किया। शिराजा पतन में दौरा के दौरान बुनियादी मरकज़े सेहत की इंस्पेक्शन की गई, सेहत की दस्तियाब सहूलियात का भी जायजा लिया। शिराजा पतन के मुकाम पर दराए रावी का दौरा और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम जो है उनको चेक किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मनसूबे मुकर्रर वक्त के अंदर आला म्यार
अमल करने की हदायत की हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और शफाफ, मौसर और बर वक्त सर्विस डिलीवरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़िला इंतजामिया अवामी खिदमत, तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील और शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इकदाम जारी रखे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलरेज साहब का। अब आपको बताएं कि वजारत दाखिला की नई गाइडलाइंस जारी, एयरपोर्ट्स को मुरासले अरसाल कर दिए गए हैं। कोई भी पाकिस्तानी जायदुल मियाद नाइकोब के साथ बैरून मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। बरतानिया समेत तमाम ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर यह पाबंदी आयद होगी। गैर मुल्की पासपोर्ट के साथ पाकिस्तानी वीजा या करामत नाइकोब का होना जरूरी है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, दोहरी शरीयत रखने वाले मुसाफिरों के लिए आम खबर है। वज़ारत दाखिला की जानब से दोहरी शरीयत रखने वालों के नई सफरी गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी ज़ायदुल मियाद नाइकोब के साथ बैरून मुल्क से पाकिस्तान दाखिल नहीं हो सकेगा। बरतानिया समेत तमाम ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद होगी और गैर मुल्की पासपोर्ट के साथ पाकिस्तानी वीज़ा करामत नाइकोब का होना जरूरी होगा। वज़ारत दाखिला ने नई गाइडलाइन के हवाले से इमिग्रेशन काम को आगाह कर दिया है और फैसलाबाद में मुल्क की दीगर एयरपोर्ट्स को भी जो है गाइडलाइन के हवाले से मरासले जारी कर दिए गए हैं। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। कस्टम्स इन्फोर्समेंट का महकमे में खुद एहतसाबी और मॉनिटरिंग मज़ीद सख्त करने का फैसला। महकमा कस्टम्स के नॉन गजेटेड मुलाजिमीन के खिलाफ रवा साल के दौरान होने वाली इंक्वायरियों की तफसील तलब कर ली गई है। तफसीलात बता रहे हैं उमैर असमत, बताइएगा। आपको अपडेट करते चलें कि नॉन गजेटेड मुलाजिमीन के खिलाफ रवा साल होने वाली इंक्वायरियों की तफसील तलब कर ली गई है। 30 जून तक होने वाली इंक्वायरियों की तफसीलात मांगी गई हैं। इंक्वायरियों में सजा पाने वाले और क्लियर होने वाले मुलाजिमीन का डाटा देना होगा। तफसीलात बता रहे हैं उमैर असमत। जी उमैर, बताइएगा इस हवाले से। जी, कस्टम्स खुद एहतसाबी के लिए मुतहर्रिक है और इस हवाले से कस्टम्स इन्फोर्समेंट की जानिब से फील्ड फॉर्मेशन के सरबराहान को हिदायत जारी की गई है कि रवां साल के दौरान नॉन गजेटेड मुलाजिमीन के खिलाफ जितनी भी इंक्वायरी हुई है, चाहे वो शहरियों की या टैक्स गुजारों की शिकायत पर की गई है या फिर महकमाना उमूर की खिलाफ वर्जी पर अफसरान की जानिब से कोई इंक्वायरी कंडक्ट की गई है, तो उन तमाम इंक्वायरी की तफसीलात दी जाए। इसी तरह स्केल 1 से लेकर 15 तक के मुलाजिमीन जो इंक्वायरियों के अंदर कसूरवार करार पाए हैं और उनको सजाएं दी हैं, उनकी तफसीलात भी देना होगी। इसके साथ साथ मुलाजिमीन जो कि जिम्मेदार पाए हैं इल्जामात से, उनकी तफसीलात भी मांगी गई है और इसके साथ साथ जो जेर इंक्वायरी थे उनकी तफसीलात भी तलब की गई है। पाकिस्तान के हवाले से महकमे में खुद एहतसाबी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और वो इंक्वायरी जो कि इल्तिवा का शिकार हो रही हैं तो उनको जल्द निपटाने के लिए इक़दाम किए जाए। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। एफडीए ने 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट सेक्रेटरी हाउसिंग को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक एफडीए वन विंडो काउंटर के जरिए 6 माह में 492 शहरियों को मुख्तलिफ महकमाना खिदमात फ्राहम की हैं। स्टेट मैनेजमेंट 1 की 367, टाउन प्लानिंग 1 की 40 दरखास्तें निपटाई गई हैं, टाउन प्लानिंग 2 की 60, जबकि कच्ची आबादी से मुतालिक 25 दरखास्तों पर कार्रवाई मुकम्मल की गई है। डीजी एफडीए मोहम्मद आसिफ चौधरी ने कहा कि शहरियों को मुकर्ररा मुद्दत में रिलीफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। रोजाना की बुनियाद पर शोबा जाती कारकर्दगी की मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान की फजाई हदूद महफूज तरीन करार, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर स्पेस की तारीफ। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की ICAO एशिया पैसिफिक फोरम पर पज़ीराई। पाकिस्तान की फजाई हदूद महफूज तरीन करार, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर स्पेस की तारीफ की गई है। पाकिस्तान की फजाई इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की की आलमी सतह पर पज़ीराई हुई। पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक फोरम पर एविएशन सेफ्टी का कामयाब मॉडल पेश कर दिया। आपको बताएं कि हेलमेट न पहनने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। रवां साल हेलमेट न पहनने पर 2 लाख चालान किए गए। सीटीओ की शहरियों से हेलमेट और बैक व्यू मिरर इस्तेमाल करने की अपील। तफसीलात बता रहे हैं तैयब मकबूल। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में हादसात के दौरान शहरियों की कीमती जानें महफूज रखने के लिए हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है और रवा साल
ऐसे शहरी जो हेलमेट के बगैर बार बार मोटरसाइकिल ड्राइव करते थे उनके खिलाफ चालान भी किए गए हैं, दीगर कानूनी कार्रवाइयां भी अमल में लाई गई हैं। और इन्हीं कार्रवाइयों के हवाले से बात करने के लिए तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कितने चालान अब तक किए जा चुके हैं और फर्दर जो लोग बार बार ये वायलेशन करते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे और क्या कार्रवाइयां जारी हैं? जी बहुत शुक्रिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर नासिर जवेद राना जो हैं वो बड़े कंसर्न्ड हैं वायलेशंस को लेके, चूँकि हमारा ये बिलीव है कि वायलेशंस रुकेंगी तो हादसात में कमी वाक़ होगी और इससे खातिर नताइज भी आ रहे हैं और बेहतरी भी आ रही है। अगर हम हेलमेट की वायलेशन की सिर्फ बात करें तो दौरान साल अभी तक 2 लाख से ज़ायद हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सो हमारी ये दरख्वास्त है तमाम शहरियों से कि जब भी आप मोटरसाइकिल पे आएँ तो हेलमेट के इस्तेमाल को इस नीयत और यकीन के साथ ज़रूरी बनाएं कि ये आपकी अपनी सेफ्टी है, यह आपको महफूज बनाएगा। डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल तर्जमान सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से बताया गया कि 2 लाख के लगभग शहरियों के रवा साल यानी 6.5 माह में चालान किए गए हैं। चालान करने का मकसद शहरियों को इस बात का पाबंद बनाना है कि जब भी घर से ड्राइविंग मोटरसाइकिल राइड करने के लिए निकलें हेलमेट ज़रूर पहने ताकि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई हादसा पेश आए तो उनकी कीमती जान महफूज रह सके। और इसी के साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल ने शहरियों को ये पैगाम भी दिया है कि वालिदैन अपने बच्चों को जब वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल पर स्कूल कॉलेज या किसी काम से जाएं तो उनको हेलमेट लाजमन तौर पर पहनाया जाए ताकि उनकी कीमती जान महफूज रह सके। जी बहुत शुक्रिया तैयब आपका। आगे बढ़े आपको बताएं कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने 20 से ज्यादा वकला की डिग्रियां जाली साबित होने पर बार मेंबरशिप मनसूख कर दी है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार मियां तारिक महमूद कहते हैं अफसोस है यूनिवर्सिटीज ने वकला की जाली डिग्रियां बनाई। पंजाब बार ने जाली डिग्रियों वाले वकला के खिलाफ एक्शन लिया। जाली वकला का लाइसेंस पंजाब बार और मेंबरशिप डिस्ट्रिक्ट बार ने मनसूख कर दिया। जाली वकला के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार पंजाब बार के पास है।